السلام علیکم ناظرین، فور ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ام کی ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ السلام علیکم، میں فضیل خان۔ آپ کا یقین اور ہماری محنت سے کامیابی کا سفر جاری ہے، اور اسی سفر کا نیا ایڈریس ہے عزیز گریس، درگاہ روڈ، شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے۔ یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 and 4 BHK لگژری ریسیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز۔ ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ۔ ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں، جیسے بنجارہ ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملاپلی میں۔ صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹس، انٹرسٹ فری اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ۔ عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز۔ اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کریں، آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ہاؤس کمیٹی بلیک میلنگ کا ذریعہ، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا الزام۔ CBCID تحقیقات کا دفاع، اپوزیشن پر تنقید۔ BRS ارکان کی معطلی کی اسپیکر سے اپیل۔ BRS ارکان مکمل سیشن کے لیے معطل۔ P سرینیواس ریڈی کی برطرفی پر اسمبلی میں ہنگامہ، عوامی تحریک کی وارننگ، ہاؤس کمیٹی یا عدالتی جانچ کا مطالبہ۔ تلنگانہ میں والدین کی دیکھ بھال سے متعلق بل اسمبلی میں منظور۔ بزرگ والدین کے تحفظ کے لیے قانون، لاپرواہ اولاد کے سماجی بائیکاٹ پر زور۔ حیدرآباد میں پانی کے بحران کا خدشہ، راشن اور تعلیم کے مسائل پر احمد بلالہ نے دلائی توجہ۔ کل جماعتی اجلاس کا مطالبہ، زیر التواء درخواستوں کی یکسوئی پر زور۔ اور ملاوٹی اور غیر معیاری اشیاء کی تیاری کے خلاف فوڈ سیفٹی عہدیداروں کا کریک ڈاؤن جاری۔ کاٹے دن میں چکوڑی اور چپس بنانے والی کمپنیوں پر دھاوے، عوام اور بچوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے سفید پوش مجرموں کے خلاف گھیرا تنگ۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے اسمبلی میں کہا کہ حکومت آمدنی بڑھا کر اسے غریبوں میں تقسیم کرنے کی پالیسی پر عمل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصلاحات کے ذریعے سرکاری آمدنی میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور راگھوا کنسٹرکشن معاملے میں 2025 میں حقائق کا جائزہ لے کر مائننگ محکمے نے ٹیکس وصول کیے اور سرکاری خزانے کو نقصان سے بچایا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت نے مکمل شفافیت کے ساتھ اقدامات کیے۔ اگر ان کی تعریف کی جاتی تو افسران مزید جوش کے ساتھ کام کرتے، لیکن اپوزیشن حکومت کے نوٹس کو ہی مسئلہ بنا کر پیش کر رہی ہے۔
और हाउस कमेटी बनाने का मुतालबा कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि साबिका हुकूमत ने हाउस कमेटियों को ब्लैकमेलिंग और असासे हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया और पार्टी तब्दीलियों को फरोग देकर सियासी फायदा उठाया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 बरसों में मादनी वसाइल की लूटमार और गैर कानूनी कानूनी की तहकीकात के लिए CBCID को तहकीकात का हुक्म दिया। उन्होंने हरीश राव के KTR समेत तमाम अरकान से अपील की कि अगर उनके पास कोई सबूत हैं तो हुक्काम को फराहम करें। रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि हुकूमत मुकम्मल तहकीकात के बाद कसूरवारों को सज़ा दिलाने की जिम्मेदारी लेगी और अगर CBCID पर एतमाद नहीं तो CBI तहकीकात पर भी गौर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए हाउस कमेटी का मुतालबा कर रही है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने स्पीकर से मुतालबा किया कि BRS अरकान ऐवान की कार्रवाई चलाने में ताउन न करने पर उनको ऐवान से मुअत्तल कर दें। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने असेंबली में खिताब करते हुए BJP को कालेश्वरम प्रोजेक्ट में CBI जांच में ताख़ीर पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। BRS कानूनी मामले पर हाउस कमेटी की तश्कील देने का मशवरा दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह खुद KCR ख़ानदान पर बदनवानी के इल्ज़ामात लगा चुके हैं, जबकि G किशन रेड्डी ने भी CBI जांच की बात कही थी। इसके बावजूद मरकज़ की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं हुई। वज़ीर आला ने इल्ज़ाम लगाया कि BRS और BJP के दरमियान गठजोड़ है और लोकसभा इंतखाबात में एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाया गया। उन्होंने हरीश राव के भाई पर धरानी पोर्टल के जरिए महबूबनगर के बालानगर में सैकड़ों एकड़ आराजी पर कब्जे का इल्ज़ाम भी आयद किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर BRS कायदीन ताउन करें तो हुकूमत इस मामले की जांच के लिए हाउस कमेटी बनाने के लिए तैयार है। గారికి నేను సూచన చేస్తున్నా, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును ATMగా మార్చుకున్నారు. కేసీఆర్ కుటుంబము వేల కోట్ల రూపాయల దోపిడీకి పాల్పడ్డది. ఈ మాట ఎవరో కాదు, ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి, ఈ దేశ హోంశాఖ మంత్రి నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా గారు పదే పదే తెలంగాణకు వచ్చి కాళేశ్వరంలో వేల కోట్ల రూపాయల కుంభకోణానికి పాల్పడ్డారు. దీని మీద విచారణ జరగాలి అని వారు ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తే కేంద్ర మంత్రివర్యులు కిషన్ రెడ్డి గారు, మాకు మీ వల్ల కాదు, మీరు కేసీఆర్కి జైల్లో పెట్టలేరు, మీరు ఈ కేసును CBIకి బదిలీ చేయండి, 48 గంటల్లో కేసీఆర్ను, హరీష్ రావును, కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని జైల్లో పెడతామని కిషన్ రెడ్డి గారు స్వయంగా కేంద్ర మంత్రిగా మాట్లాడారు. వీళ్ళ మాటలు నమ్మి వీళ్ళు నిజంగానే ఏదో చేస్తారని ఇదే శాసనసభలో ఇక్కడనే నేను నిలబడి పూర్తి స్థాయిలో చర్చ జరిగిన తర్వాత CBI విచారణకి ఇవ్వడం జరిగింది. కాళేశ్వరం కుంభకోణం మీద 48 గంటలు కాదు కదా, ఎన్ని నెలలైందో మీరే చూసిండ్రు. ఇవాళ గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డి గారు సూచనలు ఇవ్వడమే మా బాధ్యత, సూచనలు ఇవ్వడమే గొప్ప విషయం అన్నట్టుగా కాకుండా నేను వారికి సూచన చేస్తున్న పాయల శంకర్ గారికి, వెంకటరమణారెడ్డి గారికి, మీరు వెళ్ళి కిషన్ రెడ్డి గారు కేంద్ర మంత్రి ఏదైతే కాళేశ్వరం మీద CBI విచారణ అన్నాడో, నెలల కొద్దీ CBI విచారణను మీరు ఢిల్లీలో తొక్కి పట్టుకొని మీరు వాళ్ళు ఒక్కటైపోయి మొన్నటి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కలిసి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఓట్లు సీట్లు పంచుకున్నారు కదా. మీరు సూచన చేసే ముందు మీ నాయకుడు కిషన్ రెడ్డి గారిని, కేంద్ర మంత్రిని CBI విచారణకు ఆదేశాలు తీసుకొని వచ్చి కాళేశ్వరం BRS के अरकान को सेशन के मुकम्मल होने तक मुअत्तल कर दिया गया। BRS ने रियासती वजीर पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी को फौरी बरतरफ करने का मुतालबा किया है। पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत कार्रवाई नहीं करती तो वो गवर्नर से रुजू करेंगे और अवामी सतह पर तहरीक चलाएंगे। KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि हरीश राव ने दस्तावेजी सबूतों के साथ बड़े माइनिंग स्कैंडल को बेनकाब किया है, जिसमें वजीर के खानदान से मुंसलिक कंपनी मुलविस है। उन्होंने सवाल उठाया कि दीगर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद राघवा कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया और इसे वजीर आला या वजीर की सरपरस्ती करार दिया। KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में गैर कानूनी कानूनी ज़मीनों की बेज़ाब्तगियाँ और मेट्रो प्रोजेक्ट में भी बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे हैं। BRS ने मामले की तहकीकात के लिए हाउस कमेटी या हाईकोर्ट जज से अदालती इंक्वायरी का मुतालबा किया है और कहा है कि अगर हुकूमत ने कार्रवाई न की तो अवामी तहरीक तेज़ की जाएगी। BRS के अरकान ने हाउस कमेटी तश्कील देने का मुतालबा करते हुए शोरगुल किया।
तेलंगाना असेंबली ने वालिदैन की देखभाल मुलाजिमीन की जिम्मेदारी से मुताल्लिक बिल को मंजूरी दे दी। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि वालिदैन अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की परवरिश में लगा देते हैं, मगर बच्चे बड़े होने के बाद अक्सर उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग वालिदैन को सहारा देने के लिए ये कानून लाया गया है। उन्होंने बताया कि मरकज़ ने 2007 में बुजुर्गों के लिए एक कानून बनाया था, जिसके तहत वालिदैन को ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये तक मदद दी जा सकती है, मगर मौजूदा हालात में कुछ बच्चों का रवैया ऐसा है कि समाज को शर्मिंदगी होती है। वज़ीर आला ने कहा कि ख़ानदानी मोहब्बत जैसे मामलात पर कानून बनाना अफसोसनाक है, लेकिन जो लोग अपने वालिदैन की देखभाल नहीं करते उन्हें समाजी तौर पर बायकॉट किया जाना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि यह कानून सिर्फ सरकारी मुलाजिमीन ही नहीं बल्कि अवामी नुमाइंदों पर भी लागू होगा। रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू ने बीआरएस अरकान को सख्त जवाब देते हुए कहा कि साबिका हुकूमत में 2014-2018 में कायम 3 हाउस कमेटियां कभी मौसर तरीके से काम नहीं कर सकीं और न ही कोई रिपोर्ट पेश की गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत पहले ही CBCID तहक़ीक़ात का ऐलान कर चुकी है, इसके बावजूद हाउस कमेटी का मुतालबा बेमाने है। वजीर ने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस अरकान जानबूझकर असेंबली की कार्रवाई में रुकावट डाल रहे हैं और हुकूमत को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने स्पीकर से मुतालबा किया कि ऐवान की कार्रवाई में खलल डालने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुतालिबात ज़र पर मुबाहिस के दौरान कहा कि कृष्णा और गोदावरी के आबी ज़खायर की सतह में कमी हो रही है, जिससे हैदराबाद में पानी के बहरान का खदशा पैदा हो गया है। उन्होंने सिलसिले में कुल जमाती इजलास तलब करने का मुतालबा किया। उन्होंने राशन कार्ड्स के इजरा पर उत्तम कुमार रेड्डी को मुबारकबाद दी। ताहम उन्होंने कहा कि तकरीबन 30,000 दरख्वास्तें अभी भी ज़र इल्तिवा हैं, जबकि राशन दुकानों की मौसर निगरानी ज़रूरी है। अहमद बलाला ने महालक्ष्मी स्कीम के तहत 500 में गैस सिलेंडर देने के वादे को पूरा करने का भी मुतालबा किया और कहा कि इस सिलसिले में 62 लाख दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं। तालीम के शोबे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बजट नाकाफ़ी है और कम से कम 10% बजट मख्तस किया जाना चाहिए। उन्होंने पुराने शहर में इंटीग्रेटेड स्कूल्स के क़याम पर भी अरकान से बातचीत करने की अपील की। अहमद बलाला ने दीगर उमूर पर भी सवाल उठाए। रुकन असम्बली ने सरकारी तालीमी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ और दीगर इक़दामात के लिए मजलिस अराकीन असम्बली की तजावीज़ पर हुकूमत की सर्द मोहरी को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। सर, मैं इरिगेशन मिनिस्टर साहब जनाब उत्तम कुमार रेड्डी साहब की तवज्जो कुछ अहम मसाइल की तरफ दिलाना चाहता हूं। साहब, कृष्णा रिवर के रिजर्वर जुराला श्रीशैलम डैम और नागार्जुना सागर में पानी का लेवल बहुत कम हो गया है साहब, जिसकी वजह से कम बारिश और आंध्र प्रदेश की जानिब से ज्यादा पानी ड्रॉ करने की वजह है साहब कि ये इन डैमों में पानी कम हो गया। इस तरह गोदावरी रिवर के रिजर्वर श्री राम सागर, निजाम सागर, सिंगूर डैम, मनियार डैम और यलमपल्ली बैरेज में भी पानी का लेवल गिर रहा है साहब। ये सूरत हाल तेलंगाना में आने वाले दिनों में पानी का बहरान की तरफ इशारा करती है। खास तौर पर गर्मियों में पीने के पानी के लिए बहुत तकलीफ होने वाली है। नागार्जुना सागर और यलमपल्ली बैरेज में कम पानी होने की वजह से हैदराबाद की सप्लाई पर भी असर अभी से पड़ना चालू हो गया। इसकी तरफ खास तौर पर तवज्जो देने की जरूरत है। मैं हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं कि नए राशन कार्ड इशू किए गए हैं। पिछले 10 साल में पिछली हुकूमत ने सिर्फ आज दिलाया था, एक भी राशन कार्ड इशू नहीं किया था। मैं मेरी पार्टी की जानिब से इस हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने नए राशन कार्ड इशू किए हैं। 1 करोड़ 5 लाख राशन कार्ड स्टेट में मौजूद है फिलहाल, जिसमें करीब 3.38 करोड़ लोग बेनिफिशियरीज है इसके अंदर। यहां ये एक पॉजिटिव कदम है, लेकिन सर अभी तक 30,000 से ज्यादा सिर्फ शहर में इंक्वायरीज पेंडिंग है। मैं मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि प्रजा पालना में और दूसरी जगह जो दरखास्तें दिए थे, जो एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है, उनकी एक्सीव की जाए। वो तमाम एप्लीकेशन की इंक्वायरी कर उनको खत्म किया जाए। सर, फेयर प्राइस शॉप मॉनिटरिंग में कमी है। फेयर प्राइस शॉप की मॉनिटरिंग होना जरूरी है। मैं हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं कि जो हुकूमत ने, पिछली हुकूमत भी चावल देती थी लेकिन वो चावल खाने के काबिल नहीं था। ये हुकूमत जो चावल दे रही है ये गरीबों को खाने के काबिल चावल है, बारीक चावल है। अवाम खरीद के चावल खा रही है। पिछले वक्त चावल को बेच दिया जाता था, 1 रुपए से खरीदते थे, 10 रुपए से राशन शॉप खरीद लेके ब्लैक मार्केटिंग करते थे।
आज कम से कम ये हुकूमत जो चावल दे रही है इससे आवाम को खाने को चावल मिल रहा है, लेकिन सब बजट बड़ा है लेकिन अमलावरी कम है। जितना बजट है उतनी अमलावरी नहीं है। स्कीम अनाउंस हुई है लेकिन अवाम तक पहुंच नहीं रही है। मैं आपके जरिए उत्तम कुमार रेड्डी साहब से गुजारिश करूंगा कि जो मसाइल मजलिस ने उठाई है, जो राशन कार्ड पेंडिंग्स है, उनको उनकी जल्द से जल्द उनकी सुनवाई कर उनकी इंक्वायरी कर वो राशन कार्ड इजराई किया जाए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि गैस सिलेंडर्स के अंदर जो आजकल डोमेस्टिक गैस के अंदर जो तकलीफ हो रही है, हुकूमत ने वादा किया था महालक्ष्मी के अंदर 500 रुपए पर सिलेंडर सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन रियलिटी ये है साहब कि सिर्फ 42,90,000 बेनिफिशियरीज को ये मिल रहा है। 62,10,000 राशन कार्ड होल्डर्स को अभी तक ये स्कीम का इस्तेफादा नहीं हुआ। इनको क्यों नहीं दे रहे? ये भी मुस्तहिक है, ये भी हकदार है, इनको भी दिया जाए। 10 में से सिर्फ 4 लोगों को मिल रहा है, बाकी के 6 लोग इंतजार में हैं। मजलिस ने पहले भी कहा था कि नए स्कूल्स बनाना अच्छा है लेकिन पुराने स्कूल को मजबूत बनाना भी जरूरी है। बिल्डिंग प्रोवाइड करें, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें, टेक्निकल और टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का अपॉइंटमेंट करें। मैं हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं कि कई साल से रुका हुआ डीएससी का एग्जाम इस हुकूमत ने कराकर 11,000 नए टीचरों का तकर्रुर कराया है, लेकिन और भी तकर्रुर बाकी है, अभी भी और अपॉइंटमेंट्स बाकी है, और वैकेंसीज है। हमको जरूरत है कि डीएससी के जरिए इसको कराया जाए। और खास तौर के ऊपर उर्दू मीडियम के साथ जो सौतेला सलूक हो रहा है वो आपके जरिए मैं हुकूमत के नॉलेज में लाना चाहूंगा कि डीएससी उर्दू मीडियम के पोस्ट निकलते हैं, उसका डीएससी इम्तिहान भी होता है, लेकिन उसमें से कुछ सीट SC/ST के लिए रिजर्व है, ये उनका हक है। लेकिन SC/ST के अंदर कोई भी लोग अप्लाई नहीं करते, कोई टीचर्स पोस्ट के लिए आते नहीं, तो एक बार 2 बार 3 बार उनको कॉल कर उसके बाद उसको डी रिजर्व कर फिर से जो लोग ऑलरेडी डीएससी लिखे उनको दिया जा सकता है। 2011 से पेंडिंग है वो। पिछले बार राजशेखर रेड्डी साहब ने डी रिजर्व किया, उसके बाद गुज़िश्ता हुकूमत के अंदर हम पुकार कर हर असेंबली सेशन में थक गए। ये हुकूमत से उम्मीद है कि जितने पोस्ट जो SC/ST को रिजर्व है, जो डी रिजर्व कर उनको फिर से जो है सो मुसलमानों को उर्दू को मजबूत करिए, उर्दू मीडियम के जो टीचर्स की कमी है उसको पूर्ण करिए, उसको भरिए और उर्दू मीडियम के टीचर्स का तकर्रुर करिए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, 2 साल में ये हुकूमत 11,000 टीचर्स भर्ती की है और 25,000 अपॉइंटमेंट बाकी है। पिछले 8 साल से यह भर्ती नहीं की गई थी, ये हुकूमत ने किया है। मैं ये हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं। ये भी हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं और ये भी कर दीजिए साहब, 5 साल से डीए पेंडिंग है उनका, टीचर्स का 5 साल से डीए पेंडिंग है। 30 महीने से 5 डीएस देने का है, 30 महीने से पेंडिंग है। पीआरसी बस डेली कोई फैसला नहीं। रिटायर्ड एम्प्लॉयज के करोड़ों रुपए, चाहे उनके पेंशन बेनिफिट्स हो, हर चीज उनकी रुकी हुई है। हॉस्पिटल के बिल्स तक उनके रुके हुए हैं, वर्किंग स्टाफ के बिल्स भी पेंडिंग है, कोई डेट नहीं। फाइल चल रही है लेकिन मुलाजिम इंतजार में है। ओपीएस का वादा किया गया, अभी खामोशी है, कुछ नहीं है ओपीएस के बारे में। 30 साल से सर्विस रूल्स पेंडिंग है, स्कूल में स्टाफ और फैकल्टीज की कमी है। नए स्कूल्स का प्लान है लेकिन पुराने स्कूल्स मजबूत नहीं। जब आप ही ने कहा कि 6 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे दो, हम 2 करोड़ के एस्टिमेट्स बनाकर भेजते हैं कॉलेजेस के बाउंड्री वॉल्स के लिए, टॉयलेट्स के लिए, जो भी स्कूल एजुकेशन के अंदर हमारे वो काम है वो हम भेजते हैं, तो उसका कोई आगे नहीं बढ़ता। वो कहते हैं कि डीओ से इसका एनओसी लेकर आओ, डीओ कहते हैं कि हमारे को एनओसी देने का कोई इख्तियार नहीं है। तो बहरहाल फुटबॉल बना के रखे हैं हमारे कामों को साहब। ये बहुत जरूरी है कि जब हम तालीम के ऊपर काम कर रहे हैं, जब हुकूमत तालीम के ऊपर संजीदा है, एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव कराना चाहती है, तो ये जरूरी है कि जो काम हमारे रुका रहे हैं, खासतौर पर इंटेंशनली रुकाया जा रहा है, आप बुरा मत मानिए। मैं स्पीकर साहब, मैं हुकूमत को कहूंगा कि बुरा मानने की बात नहीं है, इसके ऊपर आप रिव्यू करिए। अगर से हम कह रहे हैं सो बात सही है या गलत है, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो रिव्यू करे कि इस तरीके का माहौल चल रहा है। आपकी भी नीयत वो है कि गरीब बच्चों को तालीम मिले, अच्छी से अच्छी तालीम इस हुकूमत के अंदर मिले, हम भी वही चाह रहे हैं। हमारा भी मकसद वही है कि गरीब बच्चों को अच्छी तालीम मिले। उसके लिए हमको क्या क्या करना है, आप हम मिलकर ही करेंगे तो हम कुछ कर सकेंगे। और भी हमारे मुतालबात है,
हम जो राइटिंग के अंदर हुकूमत को देंगे और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत तालीमी मैदान के अंदर गरीबों को अनाज के लिए और पानी के मसले के लिए, पानी की जो आने वाले दिनों के अंदर हमको खिल्लत का सामना ना कर सके, जिसके ना करना पड़े, अब मैंने मिनिस्टर साहब के सामने तमाम चीज़ें रखी है। हुकूमत इसके ऊपर पॉजिटिव अंदाज के अंदर तमाम मेरी बातों को पॉजिटिव में लेकर इसका हल निकालेंगी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि और आने वाले बजट में ये भी उम्मीद करता हूं कि ये हुकूमत एजुकेशन का बजट 7.5% से उठाकर 10.5% से ज्यादा करेगी, मोर देन 10% करेगी। बहरहाल मैं मेरी जानिब से आपका फिर एक बार शुक्रिया करता हूं। शुक्रिया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सरकारी मुलाजिमीन की जवाबदेही बढ़ाने और वालिदैन की कफालत को यकीनी बनाने के लिए लाए गए बिल की मजलिस मुकम्मल तायीद करती है। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन बेराज ने खिताब करते हुए कहा कि सरकारी मुलाजिमीन पर लाजिम होगा कि वो अपने वालिदैन की देखभाल करें। खानगी मुलाजिमत करने वाले को वालिदैन को माली या समाजी तौर पर नज़रअंदाज करने पर निगरानी की जाएगी। इस मकसद के लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी कायम किया जाएगा। आपने आज जो बिल इंट्रोड्यूस किया है वो बहुत ही अहम बिल है, जो बिल नंबर 18 ऑफ 2026 है। ये बिल ऐसा बिल है सर, आज जो हर जगह हमारे माशरे के अंदर जो बुराई फैलती जा रही है उसके लिए आप बिल लाए हैं। कैसे बुराई फैल रही है? एक माँ और बाप अपनी औलाद को पाल पोस कर बड़ा करता, काबिल बनाता, पढ़ाता लिखाता, सब करता, उसके बाद में जब बेटे को अपनी माँ और बाप की खिदमत करने की जरूरत पड़ती है, वैसे टाइम के ऊपर वही कुछ ऐसी औलादें हैं, जो ऐसे बच्चे हैं अपने बूढ़े माँ बाप को बिल्कुल केयर नहीं कर रही है। खास तौर से उनके साथ सुलूक भी ऐसा कर रहे हैं जैसा नौकरों की तरह सुलूक करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके जरिए से, आपने जो बिल इंट्रोड्यूस करा बेशक बहुत अच्छा है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रहता है तो उसकी सैलरी में से आपने पैसा दे के और वो माँ बाप को देखने की कोशिश करते हैं, बेशक अच्छी बात है सर। गवर्नमेंट सर्वेंट से हटके कोई प्राइवेट आदमी अपना बिजनेस करता है या प्राइवेट जॉब करता है तो उन लोग के भी लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी तरफ से अपने बूढ़े माँ बाप को देखने के लिए। मगर आज ये हो रहा है, देख रहे कुछ नहीं, ओल्ड एज होम खोल जा रहे हैं, वहां पे जाके बिल्कुल अनाथ आश्रम की तरह छोड़ देते, एनजीओ उसको ओल्ड एज होम चलाते हैं। तो मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इनको देखने के अलावा इनको अटेंडर की भी जरूरत पड़ती सर। ये एज के अंदर कोई ना कोई सहारे की जरूरत पड़ती सब, मगर ये सहारा देने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आपके जरिए से कहना चाहता हूं, हुकूमत बहुत अच्छा इनिशिएटिव ली है। ये बिल की हमारी पार्टी के जानिब से हम भरपूर न सिर्फ तायद करते हैं, हम ये कहते हैं कि कोई अच्छे सेंटर्स हुकूमत खोलिए, वहां पे नर्सिंग अच्छी रखिए ताकि ओल्ड एज लोगों को हर चीज की, यहां तक कि सर टॉयलेट्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे टाइम के ऊपर भी औलाद छोड़ के चले जा रही है। एक माँ बाप अपनी औलाद के लिए सब कुछ करते हैं, मगर जब उनका टाइम आता है तो औलाद पलट के नहीं देखते हैं। हमारी पार्टी की जानिब से बिल की तायद करते हैं और उम्मीद करते हैं ये हुकूमत ने जो इनिशिएटिव लेकर ये बिल लेके आया है इसको अच्छे से न सिर्फ डिजाइन करेंगे बल्कि इन लोग के हेल्प के लिए भी पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मानीरो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट पर असम्बली कमेटी हाल में जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत रियासती वजीर तुमला नागेश्वर राव ने की। इजलास में जोपली कृष्णा राव और अडुल लक्ष्मण कुमार समेत दीगर वज़रा, अवामी नुमाइंदे और आला अफसरान शरीक हुए। इजलास में मनसूबे की पेशरफ्त, ज़र-ए-इल्तिवा फंड्स और तकमील के लिए दरकार इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि हुक्काम को काम तेज़ करने की हिदायत दी गई। वज़रा ने जल्द ही मनसूबे का ज़मीनी दौरा करने का ऐलान किया और मुतल्लिक़ा महकमों को आराजी हसूल, लागत और दीगर तजावीज़ तैयार करने की हिदायत दी। असम्बली में बीआरएस पार्टी के अरकान असम्बली का एहतजाज जारी है। अरकान ने इतवार के दिन गन पार्क पर धरना दिया। रियासती वजीर पोंगलटी श्रीनिवास रेड्डी को काबीना से बरतरफ करने और रघुआ कंस्ट्रक्शन की बेसाख्तगियों पर हाउस कमेटी कायम करने का मुतालबा करते हुए नारे लगा रहे थे। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मेनका गांधी की क़यादत में एक वफ्द ने मुलाकात की। इजलास में श्रीधर बाबू और आला हुक्काम भी मौजूद थे, जहां रियासत में आवारा कुत्तों की देखभाल और
इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। हुक्काम ने म्युनिसिपल इलाकों में स्ट्रीट डॉग्स की स्टरलाइजेशन प्रोग्राम की तफसीलात पेश की, जबकि वज़ीर आला ने बताया कि हुकूमत गाय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाम में मनसूबाबंदी कर रही है। उन्होंने एंकापल्ली में जदीद सहूलियात के साथ गौशाला की तामीर और दीगर मुकामात और मंदिरों के करीब मज़ीद गौशालाएँ कायम करने के मनसूबे का भी जिक्र किया। मेनका गांधी ने जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए इन कोशिशों की तारीफ की। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट व मरकजी वजीर बंडी संजय ने सनसनीखेज इल्जामात लगाते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी और केटी रामाराव के दरमियान खुफिया समझौता हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि इसी वजह से केटीआर के खिलाफ बदनवानी के मामलात में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और सिर्फ हरीश राव को निशाना बनाया जा रहा है। बंडी संजय के मुताबिक रेवंत रेड्डी केसीआर के खानदान के खिलाफ बड़े पैमाने पर तहकीकात से गुरेज कर रहे हैं और कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मुकम्मल बदनवानी की जांच नहीं करवा रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस और बीआरएस आपस में मिली हुई हैं और सियासी फायदे के लिए मामलात को महदूद रखा जा रहा है। बंडी संजय ने वाज़ेह किया कि बीजेपी खानदानी सियासत के खिलाफ है और बीआरएस के साथ किसी भी किस्म का इत्तेहाद मुमकिन नहीं, जबकि आने वाले इंतखाबात में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। बीआरएस की फ्लोर लीडर हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि वजीर पोंगलटी श्रीनिवास रेड्डी की कंपनी माइनिंग बदउनवानी में मुलविस है और हुकूमत दिफाई पोजीशन में आकर तवज्जो हटाने की सियासत कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले की तहकीकात CBCID के बजाय किसी मौजूदा जज से कराई जाए और शफाफ तहकीकात के लिए वजीर को ओहदे से हटाना जरूरी है। हरीश राव ने दावा किया कि हुकूमत ने असम्बली में अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया और कई सवालात के जवाबात से गुरेज किया। उन्होंने खबरदार किया कि बीआरएस इस मसले पर अपनी आइंदा हिकमत अमली का ऐलान करेगी और जिद्दोजहद जारी रखेगी। तेलंगाना जागृति के सदर के कविता ने धरना चौक पर आउटसोर्सिंग मुलाजमीन के एहतजाज की हिमायत करते हुए कहा कि वो माजी में उन्हें इंसाफ न दिलाने पर माफ़ी चाहती हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि आउटसोर्सिंग मुलाजमीन के लिए फौरी तौर पर कॉरपोरेशन कायम की जाए और एजेंसी सिस्टम खत्म किया जाए। कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत एजेंसियों को फ़ायदा पहुंचा रही है जबकि लाखों मुलाजमीन को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर 2 दिन में मसला हल न हुआ तो एहतजाज को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि मसला हल होने तक उनकी तंजीम मुलाजमीन के साथ खड़ी रहेगी। ईरान पर मुसल्लत की गई हलाकत ख़ेज़ जंग पर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ दुनिया भर में अवामी एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। अशिया ज़रूरिया की किल्लत की वजह से सारी दुनिया मुतासिर हो रही है। हैदराबाद में भी इतवार के रोज़ छुट्टी के बावजूद सैकड़ों अफराद ने अमन रैली निकाली, जिसमें जंग के खिलाफ और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ शदीद गम गुस्से का इज़हार किया गया। मुख्तलिफ जमातों और अवामी तंजीमों के नुमाइंदे भी इस रैली में शरीक थे, जिसका तारीखी चार मीनार से आगाज़ हुआ और नुमाइश मैदान नामपल्ली पर इख्तिताम अमल में आया। एहतजाजियों ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। अलावाज़ीन पकवान गैस, पेट्रोल और दूसरी अशिया की किल्लत से कहा कि अवाम सख्त परेशान हैं। एहतजाजियों ने इस मौके पर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने खोए के ताजिरों के मसाइल की यकसुई की, जिस पर खोए के ताजिरों ने अपनी दुकानें खोल दी। ताजिरों ने बताया कि ओहदेदारान के पास से 300 ग्राम खोआ ले जाकर इसकी जांच कर सकते हैं, न कि किलो की मकदार में। मीर जुल्फ़िकार अली ने बताया कि उन्होंने रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग के हमरा कमिश्नर पुलिस से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में खोए के ताजिरों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में ख़ास तौर से खोए की एक्सपायरी डेट और पैकेजिंग को तरजीह दी गई। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन मौजूद थे। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से तेलंगाना इंटरमीडिएट 2026 के नताइज 5 या 6 अप्रैल तक जारी हो सकते हैं। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के तलबा tgbie.new.cgg.gov.in या वेबसाइट tgbie.cgg.gov.in पर अपना हॉल टिकट नंबर दर्ज करते हुए नतीजा मालूम कर सकते हैं।
काटेधन अत्तापुर में फूड सेफ्टी के अहदेदारों की जानिब से छापे मारे गए। इस मौके पर चकोड़ी और चिप्स बनाने वाली सनतों को निशाना बनाया गया। अहदेदारों ने ताजरों से एक्सपायरी डेट और दीगर मालूमात दरियाफ्त की, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के खिलाफ केस दर्ज करके भारी मकदार में मिलावटी अशिया का स्टॉक जब्त किया है। वाज़ेह है कि सिटी पुलिस ने एक अहम और संगीन जुर्म पर तवज्जो मरकूज करते हुए फूड सेफ्टी फोर्स तश्कील दी है, जो टास्क फोर्स के साथ दावे करते हुए अवाम को जहर खिलाने वाली कंपनियों के खिलाफ न सिर्फ सख्त कार्रवाई की जा रही है, बल्कि ऐसे सफेद पोश मुजरिमों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया जा रहा है। गुज़िश्ता चंद रोज से अवाम हैरान हैं कि हमारे माशरे में ऐसे सफेद पोश दरिंदे भी इज्जत के साथ जी रहे हैं, जो न सिर्फ खाने पीने में इस्तेमाल की अशिया में मिलावट करते हैं, बल्कि छोटे मासूम बच्चों के खाने वाली सस्ती अशिया में मिलावट के जरिए जहरीला मवाद मिलाकर अवाम और मासूम बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेहदीपट्टनम पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल पर अशरार ने हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 28 और 29 मार्च की दरमियानी शब मेहदीपट्टनम पुलिस ने तलायागर्दी करते हुए रात के औकात में मुश्तबा नौजवानों से पूछताछ की तो नौजवानों ने पुलिस पर लकड़ियों और पत्थरों से हमला कर दिया। इस सिलसिले में पुलिस ने तहकीकात करके 3 अफराद अब्दुर्रहमान, महबूब अली कादरी और नवीद पाशा को हिरासत में लिया है। पुलिस की जानिब से मजीद तहकीकात जारी है। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले मुस्तखर के इलाके शांतिनगर कॉलोनी में हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब पेश आए कत्ल के वाक़े ने इलाके में सनसनी फैला दी और अवाम में खौफ व हिरास पैदा हो गया। तफसीलात के मुताबिक 26 साला नौजवान मोहम्मद अरबाज पर एक शख्स ने लकड़ी के डंडे से सर पर जोरदार हमला किया, जिसके नतीजे में शदीद खून बहने से वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस फौरी मुकाम वारदात पर पहुंच गई और नाश को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने जाए वक़्त का मुआयना करते हुए अहम शवाहिद इकट्ठे किए और मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस सिलसिले में डीएसपी आदिलाबाद जीवन रेड्डी ने वन टाउन सर्कल इंस्पेक्टर सुनील कुमार और सब इंस्पेक्टर अशोक के हमरा मुकाम वारदात का दौरा किया और तहकीकात का जायजा लिया। सर्कल इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि मुतवफ़्फ़ी के वालिद की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुलजिम की तलाश जारी है। इब्तिदाई तहकीकात में पुलिस को शुबा है कि इस कत्ल के पीछे नाजायज़ ताल्लुकात का मामला हो सकता है, ताहम असल हक़ाइक़ तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही सामने आएंगे। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से जांच में मसरूफ़ है। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास का माहौल पाया जा रहा है, जबकि अवाम ने ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हाउस कमेटी ब्लैकमेलिंग का जरिया, वजीर आला रेवंत रेड्डी का इल्जाम। CBCID तहकीकात का दिफा,
अपोजिशन पर तनकीद, बीआरएस अरकान की मुअत्तली की स्पीकर से अपील। बीआरएस अरकान मुकम्मल सेशन के लिए मुअत्तल, पी श्रीनिवास रेड्डी की बरतरफी पर असेंबली में हंगामा, अवामी तहरीक की वार्निंग, हाउस कमेटी अदालती जांच का मुतालबा। तेलंगाना में वालिदैन की देखभाल से मुताल्लिक बिल असेंबली में मंजूर, बुजुर्ग वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून, लापरवाह औलाद के समाजी बाइकॉट पर जोर। हैदराबाद में पानी के बहरान का खदशा, राशन और तालीम के मसाइल पर अहमद बलाला ने दिलाई तवज्जुह, कुल जमाती इजलास का मुतालबा, ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों की यकसुई पर जोर। और मिलावटी और गैर मियारी अशिया की तैयारी के खिलाफ फूड सेफ्टी ओहदेदारों का क्रैकडाउन जारी, काटेदन में चिकोड़ी और चिप्स बनाने वाली कंपनियों पर धावे, अवाम और बच्चों की जिंदगियों से खेलने वाले सफेद पोश मुजरिमों के खिलाफ घेरा तंग। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।